سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے بہت سی باتیں ہیں روزے کے تعلق سے، اور روزوں کے ایام بھی ہیں، روزوں کے دن بھی چل رہے ہیں، اور ضرور ہے کہ ہم روزے کے بارے میں جانیں کہ خدا کا کلام ہمیں کون سے روزے کی تعلیم دیتا ہے۔ بعض وقت ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن روزہ کس طرح سے ہمیں رکھنا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، روزہ ہماری زندگی سے کیا چاہتا ہے، اس سے ہم بالکل بے خبر ہیں۔ نہ تو ہم روزہ رکھنے کے مقصد کو جانتے ہیں، نہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا کس طرح سے ہے، اور بس جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ چل رہا ہے، اور بعد میں پھر بہت سے لوگوں کے آگے مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہم بتا ہی نہیں پاتے ہمارا روزہ کیا ہے، روزہ کیسا ہے، روزہ کتنے وقت کا ہے، روزہ کتنے بجے ہم کھولتے ہیں، روزہ ہم رکھتے کیوں ہیں، روزے کی برکات کیا ہے، روزے کے فائدے کیا ہے، یہ ساری چیزوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں، ہم اس بات کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن آج بھی ہم روزے کے بارے میں ہی سیکھیں گے کہ روزہ ہماری زندگیوں سے کیا چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہتے ہیں جی ہمارے اوپر کوئی فرض ہی نہیں ہے، لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم پر کوئی فرض نہیں ہے یا ہم نے روزہ نہیں رکھنا۔ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ کہیں پر بھی روزے کی کہیں پر کوئی مخالفت نہیں کی گئی، نہ ہی خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک جگہ سوال ضرور کیا گیا کہ آپ کے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، فقی فریسی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی خدا یسوع مسیح نے ان کو جواب دیا، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ ایسی کہیں پر بھی کلام خدا کے کلام میں بائبل مقدس میں اس کی کہیں پر بھی تعلیم نہیں ملتی، اور نہ ہی کہیں پر لکھا ہوا ہے۔ آپ اعلانیہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم خدا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ہم خدا کی ہدایت پر روزہ رکھتے ہیں۔ اور روزہ رکھنا ہر ایک ایماندار کی زندگی میں، راست باز کی زندگی میں، ہر ایک شخص کی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے لاگو نہیں ہے۔ روزہ ضروری ہے، روزہ رکھنا ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم روزہ کتنے وقت کا رکھیں، ہم روزہ کتنی دیر کا رکھیں، ہم روزہ 3 دن کا رکھیں، ہم روزہ 1 ہفتے کا روزہ رکھیں، ہم 24 گھنٹے کا روزہ رکھیں، ہم کتنے دن کا روزہ رکھیں، یہ بحث الگ ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی خدا کا کلام کہیں پر نہیں بتاتا کہ آپ نے اتنے پیریڈ کا رکھنا ہے تو پھر ہی آپ کو برکت ملنی ہے۔ یاد رکھیں خدا روزے کے وقت کو نہیں دیکھتا، خدا روزے کے ٹائم کو نہیں دیکھتا، خدا اس مدت کو نہیں دیکھتا، خدا کے دل کو دیکھتا ہے۔ آئے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، اس کی مدت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ 10 گھنٹے کا رکھیں، 12 گھنٹے کا رکھیں، 24 گھنٹے کا رکھیں، 48 گھنٹے کا رکھیں، 72 گھنٹے کا رکھیں، لیکن یاد رکھیں اگر اس روزے میں آپ کی زندگی میں، آپ کی سوچوں میں، آپ کے خیالات میں تبدیلی نہیں آئی تو اس کے سارے وقت آپ کے لیے بے مقصد ہے، کیونکہ خدا آپ کی باطنی حالت کو دیکھتا ہے، خدا کا انر چینج ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ہمارا انر چینج نہیں ہے، اگر ہم دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم اپنی ظاہری صورت دکھاتے ہیں، میں روزہ دار ہوں، میں نے 40 روزے رکھے، میں نے 100 روزے رکھے، میں نے 365 دن روزے رکھے، لیکن یاد رکھیں ان 365 دنوں کا، اس 40 دن کے روزے کا کوئی بھی آپ کی زندگی میں اگر اثر نہیں ہوا تو وہ سب روزے بے فائدہ ہیں۔ اور اگر آپ نے ایک ہی روزہ رکھا ہے لیکن خدا آپ کے انر کو دیکھتا ہے، اگر آپ کا اندر ٹھیک ہے، آپ کے اندر تبدیلی ہے، آپ خدا کے ساتھ اس کے وقت کو دے رہے ہیں، آپ خدا کے ساتھ گناہوں سے توبہ کر کے چل رہے ہیں، آپ کی زندگی میں تبدیلی ہے، رویوں میں تبدیلی ہے، سوچوں میں تبدیلی ہے، تو پھر آپ کے روزے کا مقصد کامیاب ہے۔ ایویں بھوکا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سے لوگ بھوک ضرور کاٹتے ہیں لیکن اسی میں اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے روزہ رکھا، میں نے روزہ رکھا، میں نے بھوک کاٹی، میں نے پیاس کاٹی، لیکن اگر آپ کی بھوک اور پیاس صرف
दिखावे के लिए है या अपने बदन को दुख देने के लिए है। आपके अंदर तब्दीली नहीं है। रोजे का मकसद है आप दुआ में ठहरे, रोजे का मकसद है आप खुदा के कलाम को पढ़ें, रोजे का मकसद है आप अच्छी सोच लेकर चलें, रोजे का मकसद है आपकी जिंदगी में, आपकी बोलचाल में, आपकी गुफ्तगू में तब्दीली आ जाए। रोजे का मकसद है आप पर खुदा का जलाल ठहर जाए। रोजे का मकसद है खुदा की हजूरी आप पर हो। रोजे का मकसद है खुदा का मस्सा आप पर हो। आप जहां से गुजरे वहां से भी लोग फरकत पाते जाए। आप बात करें, लोग फरकत पाए, लोग ये जाने कि ये रोजादार है, लोग ये जाने ये बाफरकत है, लोग ये जाने ये मसीह है, लोग ये जाने ये ईमानदार है, लोग ये जाने कि ये रास्तबाज है। आमीन, हालेलुया। और 4 चीजें अगर हमारे रोजे में नहीं है तो याद रखिए ये रोजा सिर्फ दिखावे का रोजा है। 4 चीजें आपकी जिंदगी में रोजा लेकर आता है। अगर रोजे को हम देखें तो रोजा 4 लफ्जों का मजमुआ है। कितने? 4। कौन कौन से बताएं? रे, वाओ, जे, हे। 4 लफ्जों का मजमुआ है रोजा। और रे का मतलब है रुक जाना। अब रुकना किस लिए है? ऐसा नहीं कि हम जो कलाम पढ़ रहे हैं इससे रुक जाएं, ऐसा नहीं हम दुआ कर रहे हैं इससे रुक जाएं, ऐसा नहीं हम रोजा रख के बगैर रोजे वाली जिंदगी बसर करते रहे। पता चले पहला को थोड़ा काम सी और बहुत काम हो गया। पहले हम थोड़ी जुबान तराशी करते थे, अब हम ज्यादा कर रहे। पहले हम थोड़ी बेईमानी करते थे, अब हम ज्यादा करना शुरू कर दे। इसके लिए नहीं है, आपने रुकना है अपनी रविशों पर, अपनी ख्वाहिशों पर, अपने गुनाहों पर, बुरे कामों पर आपने रुक जाना है। अगर आपकी जिंदगी में इन बातों के लिए रुकना नहीं है तो फिर आपका रोजा दिखावे का है, फिर आपका रोजा फर्जी और फरीसियों की तरह है, फिर आपका रोजा गैर खोपत की तरह है। क्योंकि खुदा तो ये कहता है कि आप अपने कामों से, यशायाह 58 बाब में लिखा हुआ है, मैं जैसा रोजा चाहता हूं वैसा तुम नहीं रखते, अपनी जानों को दुख भी देते हो, सारी मुशक्कत भी उठाते हो, खाक और रात भर भी बैठते हो, लेकिन मैं जो रोजा चाहता हूं वो रोजा तुम खुदा हमारी जिंदगियों में बदलाव चाहता है। वो चाहते हम गुनाहों से, बुरे कामों से, बुरी ख्वाहिशों से, बुरी आदतों से, हसद से, बुग़्ज़ से, चुगलखोरी से, बदगोई से, इन सारी बातों से हम रुक जाएं, स्टॉप हो जाएं। अगर हमारी जिंदगी रुक नहीं रही, हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा, इन 40 दिनों में अगर तब्दीली नहीं है तो याद रखें ये बेमकसद रोजे हैं। फिर आप एक गुड फ्राइडे मनाएं, फिर आप पॉप संडे मनाएं, फिर आप पाक जुमेरात मनाएं, आप जो भी करें ये सारी रस्में आप करते रहें, लेकिन इन 40 दिनों में बदलना बहुत जरूरी है, चेंज होना बहुत जरूरी है। आपके चेहरे से, आपकी रंगत से, आपके अंदर से, आपकी गुफ्तगू से तब्दीली नजर आए। ये 40 दिन कोई आम दिन नहीं है। अगर आप तसव्वुर करें, आप एक लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद करें, आप उस कलवरी के मंजर को देखें, उस यरूशलेम की गलियों को देखें, आप उस जगह याद करें खुदा यीशु मसीह की उस मोहब्बत को, बाप ने जो हमारे लिए फला भेजा उसकी मोहब्बत देखें। क्या उसकी मोहब्बत है? उसे यरूशलेम की गलियों में घसीटा जा रहा है, उसे अदालतों में पेश किया जा रहा है, उस पर थूका जा रहा है, उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा है, उसके कपड़ों का पूरा किया जा रहा है, उसके हाथ और पैरों में चीर ठोके जा रहे हैं, उसकी पसली में नेज़ा मारा जा रहा है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, उसे गालियां बकी जा रही है, उसके साथ जुल्म किया जा रहा है, लेकिन उस शर्मिंदगी को भी उसने अपने ऊपर महसूस न किया। उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। को कुर्बान कर दिया। सोचिए एक लम्हा के लिए, क्या वो समा होगा, क्या वो समा है। आज भी हमारे माँ बाप को एक थप्पड़ मार दे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन्हें कोई बुरा भला कह दे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते,
اور خدا کے خادم بتا رہے تھے وہ جو صلیب کا نشان تھا اس دور میں اسے لعنتی کہتے تھے، کیونکہ اس کے اوپر ڈاکوؤں کو، اس کے اوپر برے لوگوں کو لٹکایا جاتا، اور جس کو بھی لٹکایا جاتا اسے بالکل ننگا کر دیا جاتا اور پھر اس صلیب پر لٹکایا جاتا۔ آپ اس منظر کو سوچیں کہ خدا یسوع مسیح پر کوڑے لگ رہے ہیں، اسے گھسیٹا جا رہا ہے، وزنی صلیب اس کے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے، اس نے میرے اور آپ کے بوجھ کو لیے لیا ہے، اب وہ چل رہا ہے، وہ کھوپڑی کی پہاڑ کی طرف، گلگتا کی کھوپڑی کی طرف چل رہا ہے، اس پہاڑ کی طرف رواں دواں ہے، وہ گر رہا ہے، وہ پھر اٹھ رہا ہے، لہو بہہ رہا ہے، وہ لہو لہان ہے، اس پر لوگ باتیں کر رہے ہیں، دیکھو یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا، یہ خداوندوں کا خدا کہتا تھا، دیکھو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح پر وہاں پر لوگوں نے تھوکا، انہوں نے تھوک کر اس کے چہرے کو بگاڑ دیا، اس کی کیا بری حالت ہے، اس کے کیل لگ رہے ہیں، اسے ظلم کیا جا رہا ہے، کانٹوں کا تاج اس کے سر پر ہے، لیکن اس نے وہ سارے دکھ کو میرے اور آپ کے لیے برداشت کیا۔ آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اس روزے کا کوئی مقصد ہو، بیدا سی روزہ رکھیے۔ اس سے بڑا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے خدا کو سارے دکھوں کو یاد کریں۔ اور یہ دن بہت اہم دن ہے، یہ بہت اہم دن ہے۔ ہم اس دن میں بھی، ان دنوں میں بھی اگر اپنے آپ کو نہیں بدلتے، توبہ نہیں کرتے، تو یاد رکھیں پھر ہم بڑی مشکل میں ہیں۔ رے کا مطلب ہے رک جانا، واو، وقت خدا کو، اور ہم اتنا وقت دیتے ہیں، ہم اتنا وقت دیتے ہیں کہ کل یہاں پر دعائیہ میٹنگ تھی اور کثرت سے لوگ یہاں پر تھے، ایسے ہی الڈر تھا، بھرا ہوا تھا چرچ ہے، کوئی نہیں تھا۔ یہ ہے ہمارا وقت خدا یسوع مسیح کے ساتھ، یہ ہم وقت دیتے ہیں۔ چرچ خالی پڑے ہوئے ہیں، ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، چرچ خالی پڑے ہوئے ہیں، تھانے کچہریاں بھری ہوئی ہیں، چرچ خالی پڑے ہوئے ہیں، مارکیٹوں میں رش لگا ہوا ہے، کیونکہ ہم اپنی خواہشوں کے لیے روزہ بھی رکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جیسا میں چاہتا ہوں ویسا روزہ تمہیں، تو بتائیں پھر ہم کون سے روزوں کی بات کر رہے ہیں، کون سے گڈ فرائیڈے قیامت المسیح کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کیسے مسیح ہیں؟ ہم رسمی مسیح ہیں، ہم رسمی کرسچن، بڑا پراؤڈ کرتے ہیں، آئی ایم کرسچن، ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں، یہ ہمارا پراؤڈ ہے، ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی پراؤڈ ہو کہ ہم دعا میں بھی وقت گزارتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں روزے کا مطلب ہے وقت گزارنا خدا کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ نہ انٹرنیٹ کے ساتھ، نہ واٹس ایپ کے ساتھ، نہ فیس بک کے ساتھ، نہ ٹی وی کے ساتھ، نہ دنیا کے ساتھ، نہ مارکیٹوں کے اندر، نہ بازاروں کے اندر، صرف خدا کے ساتھ ہم گزارتے وقت، لیکن اور جگہوں پہ، کیونکہ ہمارا وقت قیمتی وقت ہے۔ زور، خدا کا زور حاصل کرنے کے لیے، اور زور تبھی حاصل ہوتا ہے جب ہم خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تبھی ہم خدا کے ساتھ جھکتے ہیں، پھر ہم زور پاتے ہیں، پھر ہم قوت پاتے ہیں، پھر ہم ابلیسی قوتوں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، پھر ہم حالات کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم زور سے بھرتے ہیں۔ وہ زور کوئی عام نہیں ہے، وہ زور خدا کا زور ہے، وہ رقدس کا زور ہے، وہ پاک روح کا زور ہے۔ وہ زور تبھی آپ کے اندر ڈلیور ہوگا جب خدا کے ساتھ وقت گزاریں گے، جب خدا کے ساتھ ٹائم گزاریں گے، جب خدا کی حضوری میں جھکیں گے، جب اس کے ساتھ گفتگو کریں گے، جب آپ کا رابطہ درست ہوگا، جب دنیا سے آپ کی سوچ ہٹ جائے گی، جب دنیا سے آپ کے خیالات ہٹ جائیں گے، آپ کی نظریں خداوند پر ہے، آپ بات مجھ سے کر رہے ہیں، وہ آپ سے بات کر رہا ہے، پھر آپ جلال سے بھر جائیں گے، پھر آپ قدرت سے بھر جائیں گے، پھر آپ زور سے بھر جائیں گے، پھر آپ بابرکت ہو جائیں گے۔ آمین۔ میں نے بدھ کو بھی بتایا تھا، موسیٰ 40 دن خدا کے حضوری میں گرا رہا، روزے میں بھوکا پیاسا، کھانا پینا چھوڑ کر وہ گرا رہا، اور 40 دن کے بعد جب وہ روحیں
لے کر پہاڑ سے نیچے اترتا ہے، اس کے چہرے پر ایسا جلال چمک رہا ہے، ایسا نور چمک رہا ہے، ایسی خدا کی حضوری ہے، ایسی انائٹنگ ہے کہ جو خدا کا جلال اس سے بھرا ہوا ہے، اس کے چہرے کی طرف وہ دیکھ نہیں پا رہے، کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں ہے، وہ خدا کی قربت میں ہے، وہ خدا کی نزدیکی میں ہے، وہ خدا کے قدموں میں ہے۔ جب خدا کے قدموں میں آئیں گے، اس کی حضوری میں آئیں گے، اس کی نزدیکی میں آئیں گے، اس کی پریزنس میں آئیں گے، پھر آپ پر خدا کا جلال چمکے گا، آپ پر خدا کا نور چمکے گا، پھر آپ گھر میں بھی، معاشرے میں بھی، جہاں جائیں گے برکت کا باعث ہوں گے، دوسروں کے لیے برکت کا باعث ٹھہریں گے۔ آمین۔ اور ہدایت اسی کسی نے لینے نہیں چاہتے، اور یہاں پر تو خدا کی ہدایت حاصل کرنا ہے، اور خدا کی ہدایت تبھی حاصل ہوتی ہے جب آپ کو رقدس ملتا ہے، جب آپ کو ملتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو رکنا ہے، آپ کو زور حاصل کرنا ہے، آپ کو اس کی قربت میں آنا ہے، پھر اس کی ہدایت آپ کو ملے گی، پھر اس کی ہدایت آپ کو ملے گی، پھر رقدس آپ کو ملے گا، پھر باپ کو آپ پر ٹھہرے گا، پھر آپ بڑے بڑے کام کریں گے، پھر آپ نہ ویڈیو پر بھی فتح پائیں گے، پھر آپ حالات پر بھی فتح پائیں گے، پھر آپ مشکلوں پر بھی فتح پائیں گے، پھر آپ مایوسیوں میں بھی فتح پائیں گے، پھر اپنی کمزوریوں میں بھی فتح پائیں گے، پھر اپنی بیماریوں پر بھی فتح پائیں گے، جب اس کا رقدس آپ کے اندر جائے گا۔ آمین۔ اور ہم روزے کے لیے خدا کو وقت بھی نہیں دیتے، اور ہم وہ روزہ چاہتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ ہم خود غرضی کا روزہ چاہتے ہیں۔ کون سا؟ خود غرضی کا۔ خود غرضی کا روزہ کیا ہے؟ اپنے لیے روزہ چاہتے ہیں۔ شفایتی بھی خود غرض نہیں ہوتا، جو خود غرض شفایتی ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے روزہ نہیں رکھتا۔ ہم دوسروں کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ اسی اپنے واسطے نہیں رکھ رہے تو دنیا کا سارے کو وقت کتنے، لیکن دوسروں کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ آپ مت یہ کہیں کہ ہم پر روزے نہیں ہیں، ہم پر روزے فرض نہیں ہیں، ہم پر روزے کا مقصد ہے۔ خدا نے آپ کو ایماندار پیدا کیا ہے، راز باز لوگ ہیں آپ مسیح گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ درد رکھیں، اپنی قوم کا درد رکھیں، اپنی کلیسیا کا درد رکھیں، اپنے لوگوں کا درد رکھیں، اپنے بچوں کا درد رکھیں۔ آپ ان بچوں کے لیے جو بے روی کا شکار ہیں، ان بیٹیوں کے لیے دعا کریں جو مشکل کے اندر ہیں، گھرانے مشکل کے اندر ہیں، فیملیاں مشکل کے اندر ہیں، خاندان مشکل کے اندر ہیں، قرب کے اندر ہیں، قربت کے اندر ہیں، پریشانیوں کے اندر ہے، تکلیفوں کے اندر ہے۔ ہم جانتے ہوئے بھی ہم اپنی عیش و عشرت میں وقت گزار رہے ہیں، ہم اپنے کمفرٹ زون میں ٹھیک ہیں، ہم کسی کے لیے دعا نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کے لیے روزہ نہیں رکھنا چاہتے، ہم کسی کے درد کو نہیں لینا چاہتے، لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ خدا کا یہ کلام کہتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے روزہ رکھیں، آپ دوسروں کے درد کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ دوسروں کے لیے دعا میں ٹھہریں، آپ خود غرضی کا روزہ نہ رکھیں۔ لیکن آج ہمارے روزے خود غرضی کے ہیں، اپنے لیے، اپنے علاج کے لیے، اپنے بچوں کے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے۔ آستر نے بھی روزہ رکھا تھا، اس نے اپنے لیے رکھا تھا بھائی عارف، وہ تو کس کے لیے؟ اور وہ خود کیا تھی؟ نوکرانی تھی، ملکہ، بادشاہ کی ملکہ ہے، اسے ضرورت تھی بھائی عادل اسے روزہ رکھنے کی، وہ تو بھائی محل کے اندر ہے، اس سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی تکلیف ہو سکتی ہے اسے؟ کوئی تکلیف نہیں تھی، بادشاہ کی ملکہ ہے، لیکن اب اس نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ قوم کو بچانے کے لیے، پوری قوم کو بچانے کے لیے اس نے کتنے دن کا روزہ رکھا ہے؟
3 दिन का रोजा उसने अपने लिए नहीं रखा, उन्हें अपने किसी फरमाइश वास्ते रोजा नहीं रखा कि खुदा ए रोजे मैनू गड्डी मिल जाए, खुदा इस रोजे च मैनू घर मिल जाए, खुदा इस रोजे च मेरा ए काम हो जाए। उसने इस मकसद के लिए नहीं, उसको तक ये खबर पहुंची, उस तक ये दर्द पहुंचा कि मेरी कौम मुसीबत में है, वो खत्म हो जाएगी। उसने अपने कौम के दर्द के लिए बादशाह की उस सारे फरमान को बदलने के लिए वो मलका ने क्या किया? असर मलका ने रोजे में, और उसने रोजे में अपनी सहेलियों के साथ उन्होंने मशवरा दिया नाल लिया। आज साड़ियां सहेलियां ते साड़े सहेले भी होंगे दे हैं जी, वो छड़ भाई रईस की रोजा रख के करने हैं, मैं भी नहीं कर रखदा, तू भी। हम ऐसी बातों को पसंद करते हैं, लेकिन उसने अपनी सहेलियों को भी कहा है रोजे 3 दिन रोजे में ठहरिए, और याद रखें मेरा और आपका खुदा लश्करों का खुदा है, वो सारे फरमानों को, फारसी और मादियों के भी हुक्मों को बदलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो सारे जो आर्डर थे उन्हें कैंसिल करने की भी कुदरत रखता है। आपकी जिंदगी के खिलाफ, आपके घराने के खिलाफ, आपकी कौम के खिलाफ, आपके खिलाफ कैसे भी हुक्म जारी हो जाए, लेकिन मेरा और आपका यीशु बदलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और रोजा एक ऐसी ताकत है, वो सिर्फ दुनिया के इरादों को नहीं बदलता, वो यीशु के भी, खुदा के भी इरादे को बदल देता है। हालेलुया, आमीन। लेकिन हमें आज रोजा रखने की जरूरत है। आज मेरे साथ एक हवाला पढ़े, रोजा रखने की जरूरत है हमें। हमारी नस्लें, हमारे मोहल्ले, गलियां तबाह हो रही हैं, मौत हमारे घरों के अंदर है, नस्लों की रवैये ठीक नहीं है, मिसबिहेव हो रहा है। हमें मदद मांगने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कौम तबाह हो रही है, कलीसिया तबाह हो रही है, चर्चिस तबाह हो रहे हैं, कहीं पर दुआ नहीं है, कहीं पर रोजा नहीं है, कहीं पर दर्द नहीं है, कहीं पर दुख नहीं है, कहीं पर आंसू नहीं है। तबाह हो रहे हैं, ईमानदार तबाह हो रहे हैं, रासबाज तबाह हो रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। और मैं और आप कह रहे हैं हम किस लिए रोजा रखें, किसके लिए रोजा रखें? क्या रोजा है? आपको रोजा रखना है, खुदा के खिलाफ कहता है, आपको खड़ा होना है, आपको रत्नों में खड़ा होना है, आपको दर्द लेना है अपनी नस्लों के लिए, नौजवान बेटों के लिए, नौजवान बेटियों के लिए, कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए, खुदा के लोगों के लिए। आपको रोजा रखना है। आज हमारी बच्चियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए बड़े चैलेंज हैं, और हम कह रहे हैं हम रोजा किस लिए रखें। आज पहले मेरे साथ निकाले यशाया 58 बाब, फिर हम आगे चलते हैं। हम रोजा किस लिए रखें? रोजा हमें माफी है, मसीहियों को कहते हमें असा रोजा नहीं रखना है, साड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। लेकिन हाँ, यीशु मसीह कौन सा रोजा चाहता है? और हम भी आज वही बातें करते हैं। लिखा है 58 बाब उसकी 3री आयत, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे जबकि तू नजर, और हमने क्यों अपनी जान को जबकि तू ख्याल में। अब आगे सुने, देखो देखो जरा अपने आप को, वहां पर यही कहा जा रहा है देखो, तो इसका मतलब अपने आप को देखें, हमें देखने की जरूरत है। देखो तुम, यीशु ने कहा जब तुम रोजा रखो, मत्ती 6 बाब में यही कहा है, जब तुम रोजा रखो। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के और सब तरह की मेहनत, सख्त मेहनत लोगों से, देखो तुम इस मकसद से रोजा
झगड़ा ये है हमारे मकसद। असा शरारत दे मुक्के मारने ने, कम कोई शरारत ले करने ने, वही चुगलियां करनिया ने, वही लड़ाइयाँ, वही बुरे काम, वही हमारी रवशें, वही हमारे सारे काम और वही सारी हमारी बातें हैं। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा और शरारत के शरारत के मुक्के चुप चुपीते काम है जी, चुप चुपीते छेड़खानी करके मैनू तो पता ही नहीं है किन्ने कितना है। ये है शरारत के मुक्के, चुप चुपीते काम पूरा कर देना है, अगले का कुछ बचे या ना बचे जी। बस अब तुम इस तरह का रोजा कि तुम्हारी आवाज कहां तक में बाला पर सुनी जाए। अब तुम ऐसा रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आल में फौला तक सुनी जाए। फिर कैसे रोजे हैं हमारे? रोजों में जिंदगी नहीं बदल रही, हालात नहीं बदल रहे, बीमारियां नहीं छोड़ रही, मुश्किलें नहीं छोड़ रही, मुसीबत नहीं छोड़ रही, तंदुरुस्तियां नहीं छोड़ रही और रोजा रख रहे हैं, तब्दीली नहीं है, चेंजिंग नहीं है, फर्क कुछ नहीं आ रहा। फर्क नहीं आ रहा। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? दसो भाई, खुदा यह पूछ रहा है, क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है? फकीर फरीसी भी बड़े दावे करते थे, हम हफ्ते में 2 रोजे रखते हैं, हम बड़े ईमानदार हैं, बड़े रासबाज हैं और बड़े अपने आप को दावेदार साबित करते थे। और खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे शिगिर्द रोजा, यूहन्ना के शिगिर्द रोजा उन्हें के सब्र कर जो ये रखेंगे। अभी दूल्हा इनके साथ है, यीशु इनके साथ है, कलीसिया भराती है, कह रहा मैं जब तक साथ हूँ, लेकिन जब मैं इनके साथ नहीं होगा तो ये रोजा, तो ये कान खोल के हम इस बात को अपने ज़हनों में रख लें कि खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि ये रोज़ा रखें ये, लेकिन उसने कोई आप पर टाइम पीरियड लागू नहीं किया। हाँ, पुराने अहदनामा में शहरी रोज़ा 24 घंटे का है, एक शाम से, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा जब तुम रोज़ा रखो, तो उसने कहा है रियाकारों की तरह अपनी सूरत, बल्कि तुम अपना मुंह धोना और सर में तेल जो है शादमानी की लामत है, खुशी की लामत है, और मुंह धोना अपनी जिंदगी को बदलना है। अगर जिंदगी नहीं बदल रही तो याद रखें ये रोज़ा बेमकसद है। कहा जब तुम रोज़ा रखो, ना यीशु मसीह ने कहीं ना कहीं ये नहीं कहा है कि आप रोज़ा, कहा जब तुम रोज़ा रखो, टाइम पीरियड तुम्हारे लिए खुद मुकर्रर है, जितने वक्त का तुम रख सकते हो रोज़ा रखो ज़रूर, लेकिन तुम्हारे रोज़े के अंदर तुम्हारा इनर, तुम्हारी बातनी हालत, तुम्हारी ज़िंदगी चेंज हो जाए, सोच चेंज हो जाए, तुम्हारा मुंह धुलावा हो, ज़िंदगी तब्दील हो जाए, सर में तेल, शादमानी, खुशी हो, मुंह बिगड़ा ना हो। फकीर फरीसियों की तरह सर में आपको राख और खाद डालने की, गैर मोमिन की तरह मुंह बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। तुम शादमानी और खुशी का रोज़ा रखो। आमीन, हालेलुया। आज अभी हमें रोज़ा रखना क्यों है? हम क्यों रोज़ा, जिनकी ज़िंदगी में मकसद नहीं, आज मकसद लेकर जाएं, आज मकसद लेकर जाएं। जिनकी ज़िंदगी में जरा सोच सोच के रह गए ने कि असी कादा रोज़ा रखिए, सानू रोज़ा रखन दी, असी कौन जी पक्के ईमानदार आए। निकाले नहमिया उसका पहला बाप, बातें खुदा के कलाम में बहुत सी हैं, अभी भी हम पूरी तरह से रोज़े की स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। इस हवाले के बाद हम दुआ करेंगे
बाजी भी जो हंस रही है स्टडी बहुत ज्यादा है तो कम खींचेंगे, बस हम यहीं पर इसको इस हवाले के बाद एंड अप करेंगे। बताना ये चाह रहा हूँ कि रोजे की मुनादी बहुत ज्यादा है, रोजे के ऊपर सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वक्त को देखते हुए हम सारी बातों को एक ही दिन में नहीं सीख सकते। हमने बुध को भी रोजों पे बात की थी, आज भी हमारा, लेकिन आज भी हम पूरी तरह से उस सारी बातों तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन रोजा एक जबरदस्त अमल है, रोजा रखने से आप बहुत सी चीजों पर फाते होते हैं। आप अपनी सेहत की तंदुरुस्ती के लिए भी रोजा रख सकते हैं, आप की अलाही मदद के लिए भी रोजा रख सकते हैं, आप खुदावंद की रहनुमाई के लिए भी रोजा रख सकते हैं कि उसकी रहनुमाई को हासिल करें, और आप उसके जोर के लिए भी रोजा रख सकते हैं। बहुत सी बातें हैं उसकी कुर्बत के लिए, अपनी दुआओं को मौसर करने के लिए। रूहानी जंगजू बड़ा अहम हथियार रास्तबाजी को कायम रखने के लिए, खुदावंद की पनाह मुहाफ़ज़त हासिल करने के लिए, सेहत की तरक्की के लिए। लेकिन याद रखें, तौबा के बगैर रोजा नामुकम्मल है। म्यारी रोजे की बेहतरीन मिसाल खाकसारी, खुदा के हजूर गिरेजारी, बुरी रवशों से तौबा, ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, ना कुछ चखना, ये है म्यारी रोजा जो खुदा चाहता है। तौबा के बगैर रोजा नामुकम्मल है। तौबा होना, जिंदगी के अंदर बदलाव होना बहुत जरूरी है। आए यहाँ पर कोई भी रीड करे मेरे साथ उसकी आयत नंबर 2 से, पहला बाब, नहमिया पहला बाब। हम क्यों रोजा रखें, हमें रोजा रखने की जरूरत है या नहीं है? जी, दूसरा बाब, और पहला बाब दूसरी आयत, जल्दी से पहला बाब दूसरी आयत, फिर हम दुआ करेंगे। तो उनके पाक कलाम में यूं मरकूम है कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है, और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उसने यहूदा से जो लोग आए थे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले, जो असीरी में थे, जो असीर करके बाबुल ले गया था, उस असीरी से जब वो वापस आए तो उनसे पूछा कि यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जी जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े। अब वो कह रहे हैं बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में, उस इलाका में, उस शहर में रहते हैं, नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं। ये और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। वो कह रहे हैं यरूशलेम की फसीलें टूटी हुई है, फाटक आग से जले हुए हैं, सब चीज जले हुए हैं, घर जले हुए हैं, शहर जला हुआ है, सब कुछ टूट फूट का शिकार है, कब्रिस्तान जल चुके हैं, सब कुछ जल गया है। ये जब मैंने ये बातें सुनी, जब मैंने ये बातें, नहमिया कहता है कि जब ये बातें मैंने सुनी, जब ये बातें मेरे कानों तक आ गई कि मेरे लोग, मेरे शहर के लोग, मेरे बाबतदार के लोग, मेरे गांव के लोग वो मुसीबत में है, वो मुश्किल के अंदर है, वो दुख के अंदर है, उनके शहर जल चुके हैं, उनके घर जल चुके हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है और जिल्लत उठा रहे हैं। जब नहमिया कह रहा मैंने ये सुना है जी, तो बैठकर रोने लगा। अब नहमिया बैठ गया है। अब नहमिया ने ये खबर सुन ली है, दर्दनाक खबर है, परेशान हाल खबर है। आज मैं और आप, हमें घुटनों के बल होने की जरूरत है, हमें रखनों में ठहरने की जरूरत है, हमें मसीह कौम के लिए हमें दुआ करने की जरूरत है। आज हमारी बेटियां, आज हमारे बेटे बेरहमी का शिकार है, नशे के अंदर है, मुश्किल के अंदर है, दुख के अंदर है, मुसीबत के अंदर है, घराने परेशान है, कलीसिया परेशान है, दुआया जिंदगियां नहीं है, हालात ठीक नहीं है, गुर्बत के अंदर है, कर्ज के अंदर है। नहमिया सुनकर
कर बैठ गया है। आगे भाई। और कई दिनों तक मातम करता रहा। ओ राभा साखा राभी, अब वो कई दिनों तक बैठ गया है। हम रोजा रखते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। हम रोजा रखते हैं, हमारे पास मकसद नहीं है। हम रोजे में ठहरते हैं, हमें पता नहीं है। हम खुद गर्दी के रोजों में हैं। हम अपनी छाप के लिए, अपनी सूरत के लिए रोजा रखते हैं। यहाँ नेहमिया को बड़ा दर्द है। नेहमिया यहाँ पर फेंक गया है। अब खबर नेहमिया के खानों में है। अब नेहमिया सुकून में नहीं है, अब बेचैनी के अंदर है, क्योंकि नेहमिया ने सुना है। जी भाई। और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। अब रोजा रखा है, अब रोजे में ठहर गया है, क्योंकि नेहमिया ये जानता है रोजा वो अमल है, उससे आप खुदा के इरादे को बदलते हैं, आप दुनिया के इरादे को बदलते हैं, आप हालात को बदलने की कुदरत रखते हैं, आप बड़ी बड़ी खुदा असर करने की कुदरत रखते हैं, अल्लाह मदद को असर कर सकते हैं, खुदा के ज़ोर को ले सकते हैं। आपको रोजा रखना है, आपको दुआ में ठहरना है। हालात नहीं बदल रहे, बीमारियां नहीं छोड़ रही, मुश्किल नहीं छोड़ रही, मुश्किल के अंदर है, बड़ी तंगदस्ती है, लेकिन आपको दुआ में और रोजे में ठहरने की जरूरत है। नेहमिया ने रोजा रखा। जी। और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की और कहा, ऐ खुदा। आमीन। आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। हमने ईसाया 58 में क्या पढ़ा है? तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर नहीं पहुंचती, तुम्हारी आवाज आलमे बाला तक नहीं पहुंचती, क्योंकि तुम जो रोजा रखते हो अपनी जरूरत के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपने लिए तुम रोजे में ठहरते हो। और जो रोजा मैं चाहता हूं, जो रोजा तुम, वो रोजा आप अपनी साथ के लिए भी रखें, अपने बच्चों के, अपनी औलाद के लिए भी। रोजा कहीं पर भी ये नहीं कह रहा, लेकिन खुदा कह रहा है कि जो रोजा मैं चाहता हूं, ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूं कि आप रोजा ना रखें। अगर अजरा की मुनादी देखें तो उसने कहा अपने औलाद के लिए, अपने माल के लिए, अपने बच्चों के लिए रोजा रखो। लेकिन क्या आज हम जो ये कहते हैं कि हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा कोई पर्पस नहीं है, तो नेहमिया भी एक जबरदस्त जगह पर है, कंफर्ट जोन के अंदर है, बादशाह के महल में है, बादशाह का साथी है, ऐशो-इशरत की जिंदगी है, किसी परेशानी के अंदर नहीं है। मैं नहीं समझता कि नेहमिया को आंसू बहाने की जरूरत थी भाई। लेकिन आज नेहमिया किसके लिए आंसू बहा रहा है? नेहमिया किसके लिए रोजा रख रहा है? उसे इस दर्द कि मेरी कौम जिल्लत के अंदर है, मेरी कौम मुसीबत के अंदर है। क्या आज मैं और आप इस दर्द के लिए, इस दर्द को अपने अंदर लेते हैं कि हमने खुदा का घर बनाना है, हमने चर्च बिल्डिंग खरीदनी है? ये कैसे होगा? ये खाली पैसों से नहीं होगा, ये आपकी दुआओं से होगा, ये आपके रोजे से होगा। क्या मैंने और आपने खुदा के घर के लिए ये दर्द लिया है? क्या मैंने और आपने अपने बच्चों के लिए दर्द लिया है? अगर मैं और आप इस दुनिया से चले जाएं, क्या मेरे और बेटे और आपकी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए हमने इस दर्द को लिया है कि खुदा का घर बने, हमारे बच्चे दर-बदर ना हो? हाँ, कहीं पर भी चले जाएंगे, लेकिन क्या हमने ये दर्द को लिया कि वो इसी यूनिटी में, इसी गुच्छे में कायम रहे? क्या मैं और आप इस दर्द को रखते हैं? अगर हम इस दर्द को रखते तो कल यहाँ पर हैकल भरी हुई होती, खुदा का घर भरा हुआ होता, हमारे आंसू बह रहे होते, हमें बेचैनी लग जाती, हमें चैन ना आता कि ये, हाँ हम अपने घर के लिए तो आंसू जरूर बहाते हैं, हम अपनी खुशी के तालिब रहते हैं, हम अपनी खुशी के, जो रोजा मैं चाहता हूँ वो तुम्हें नहीं रखते। नेहमिया कौम के लिए दर्द रखता है,
नहमिया को कौम की फिक्र है, वो अच्छे कंफर्ट जोन में है। आज मैं और आप भी अपने अपने घरों के अंदर हैं, हमें खुदा ने घर दिए हुए हैं, खूबसूरत घरों में रह रहे हैं। हाँ, हो सकता है हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी भी ना हो, खुदा ना करे कि किसी की ज़िंदगी में कोई दुख या मुसीबत आए, लेकिन चर्च को एक दूसरे के लिए दर्द रखने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, हमें दुआ में ठहरने की ज़रूरत है। अगर हमारे कानों तक किसी की खबर आ चुकी है कि हमारी कोई बहन, हमारा कोई भाई हम किसी मुश्किल में है, तो मैं समझता हूँ कि उसे बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे और आपको उसके लिए दुआ और रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है। हमें अपनी कौम का दर्द रखने की ज़रूरत है। हम मसीह लोग हैं, हम खुदा की मोहब्बत देखें, उसने अपने बेटे को मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया है। क्या मैं और आप उस मोहब्बत में अपने बदनों की कुर्बानियाँ खुदा को नहीं दे सकते? क्या मैं और आप एक वक्त खुदा के हुजूर में रोज़ा नहीं रख सकते? क्या मैं और आप कुछ मुद्दत के लिए खाना पीना नहीं छोड़ सकते? क्या मेरे और आपके लिए रोज़ा कोई मौत की लामत है? क्या हम मर जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। अगर कोई मरेगा तो मैं जवाबदार हूँ, उसकी एफआईआर मेरे ऊपर है। अगर कोई रोज़ा रख के मरता है, लेकिन रोज़ा वो लाना होवे जड़ा ईसाया 58 में पढ़िया था। अगर ओला रोज़ा है तो फिर कुछ भी हो सकता है जी, फिर कुछ भी हो सकता है। ये रोज़ा रखना है नहमिया वाला, आस्तर वाला, नैनवा वाला, यूना वाला, ये रोज़ा रखे अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। यूना ने रोज़ा रखा, नैनवा शहर तबाह बर्बाद होने वाला था, उसने खुदा के इरादे को बदल दिया। आस्तर ने रोज़ा रखा, उसने बादशाह के सारे हुक्मों को तब्दील कर दिया। आमीन। नहमिया रोज़े में ठहरा है अपनी कौम के दर्द के लिए। हालेलुया। और आज मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है, अपने कलाम से मुझे और आपको बरकत दे। आज सब खड़े हो जाएं, आज सब खड़े हो जाएं। चल